कोरोना वायरस से अर्थव्यवस्था को हो रहे नुकसान की भरपाई के लिए केंद्रीय रिजर्व बैंक ने कई अहम ऐलान किए हैं। आरबीआई ने छोटे और मझोले उद्योगों को कर्ज देने वाली संस्थाओं को मजबूत करने के लिए टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन के तहत 50,000 करोड़ रुपए जारी किए। इसमें 25,000 करोड़ रुपए नाबार्ड, 15,000 करोड़ रुपए सिडबी और 10,000 करोड़ रुपए एनएचपी को दिए जाएंगे। इसके साथ ही आरबीआई से रिवर्स रेपो रेट की दर 4% से घटाकर 3.75% कर दी है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण सामने आई वित्तीय कठिनाइयों के कारण बैंक फिलहाल किसी लाभांश यानी कि डिविडेंड का भुगतान नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि मार्च के महीने में निर्यात बुरी तरह से प्रभावित हुआ है, लेकिन फिर भी देश में विदेशी मुद्रा का पर्याप्त भंडार है। आरबीआई गवर्नर ने विश्वास जताया है कि साल 2021-22 में भारत की विकास दर 7% से ज्यादा रहेगी। Continuing assessment of the macroeconomic situation and financial market conditions, we propose to take further measures with the following objectives. 1. To maintain adequate liquidity in the system and its constituents in the face of COVID-19 related dislocations. 2. Facilitate and incentivize bank credit flows. 3. Ease the financial stress. And 4. Enable the formal functioning of markets. The first set of measures relate to liquidity management. The RBI has moved in a calibrated fashion to ensure conducive financial conditions and normalcy in the functioning of financial markets and institutions. The initial efforts to provide adequate system-level liquidity are reflected in sizable net absorptions under the reverse repo operations. With this achieved, the RBI has undertaken measures to target liquidity provision to sectors and entities which are experiencing liquidity constraints and or hindrances to market access. That is, they have a difficulty in accessing the market and they have difficulty of having adequate liquidity with them. LTROs, that is long-term repo operations, which we have undertaken. So these were meant to ensure adequate liquidity at longer end of the curve, longer end of the yield curve. Exemptions from the cash reserve ratio for equivalent incremental credit disbursed by banks as loans in certain select areas and targeted LTROs or TLTROs fall in this category. In this category or in this class and sector specific measures. It is observed that deployment of TLTRO funds so far has largely been to bonds issued by public sector entities and large corporates, especially in primary issuances. The disruptions caused by COVID-19 have, however, more severely impacted small and mid-sized corporates, including NBFCs and MFIs, in terms of their access to liquidity. So we have therefore decided to undertake what we call TLTRO operations 2, that is TLTRO 2.0. Accordingly, it has been decided to conduct targeted long-term repo operations TLTRO 2.0 for an aggregate amount of rupees 50,000 crore to begin with. Please mark my words, rupees 50,000 crore to begin with in tranches of appropriate sizes. Based on our assessment of the evolving situation and based on the pattern of utilization of this 50,000 crore by the market and in the market, it is always open for RBI to step up this amount beyond 50,000 crores as per requirement or as may be necessary to see that various segments of the market, various segments of the MFIs, the NBFCs and other institutions in terms of liquidity, they remain well lubricated. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरबीआई के कदम की सराहना की है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके कहा कि आरबीआई के इन कदमों से लिक्विडिटी बढ़ेगी और ऋण की उपलब्धता में सुधार होगा। इन कदमों से छोटे व्यवसायों, एमएसएमई सेक्टर्स, किसानों और गरीबों को मदद मिलेगी। इन कदमों के तहत WMA सीमा बढ़ा देने से सभी राज्यों को भी आवश्यक मदद मिलेगी। कोविड-19 और लॉकडाउन के आगे के रोड मैप को लेकर शुक्रवार को मंत्री समूह की 12वीं उच्च स्तरीय बैठक हुई। इस बैठक में
स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने अध्यक्षता की। बैठक में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, विदेश मंत्री एस जयशंकर समेत कई मंत्री मौजूद थे। बैठक के दौरान डायग्नोसिस, ड्रग्स, वैक्सीन और हॉस्पिटल के संसाधनों पर विज्ञान और तकनीक से जुड़े संस्थानों के कामकाज की समीक्षा की गई। बैठक में यह बताया गया कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए भारत ग्लोबल पार्टनर के तौर पर काम कर रहा है। दिल्ली के सभी मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स, चाहे वो भारत सरकार के अस्पताल थे, चाहे वो दिल्ली सरकार के अस्पताल थे, चाहे वो दिल्ली की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से जुड़े हुए अस्पताल थे, उनको हमने बुलाया था। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री को इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में बुलाया था, दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय को यहाँ पर बुलाया था, और साथ में जो दिल्ली के जो स्वास्थ्य के अधिकारी हैं, और सबको हमने ये कहा है कि कोविड-19 के मरीजों का कोविड-19 अस्पतालों में अच्छी तरह से इलाज करना, उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करना, उनके लिए सर्वेलेंस करना, उनका सब प्रकार का जो व्यवस्था है उसकी सारी गहराई में जाना वो इम्पॉर्टेंट है। लेकिन उतना ही बराबर इम्पॉर्टेंट है कि नॉन कोविड का जो मरीज़ है, जिसको कोविड की बीमारी नहीं है, कोरोना वायरस की बीमारी नहीं है, और जिनके लगातार वो बीमार रहते हैं, क्रोनिक इलनेसेस हैं, उनको दूसरी तकलीफ़ें हैं, उनको किसी भी कंडीशन में हमें उनको इलाज से वंचित नहीं होने देना है। उनकी बेस्ट पॉसिबल केयर उसी प्रकार से जैसे हम पहले करते थे अपने अस्पतालों में, अपनी इमरजेंसीज में हमको करनी है। लॉकडाउन के दौरान गृह मंत्रालय ने कुछ और क्षेत्रों में छूट देने का निर्देश दिया है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजे गए निर्देश में ये कहा गया है कि लघु वनोपज, वृक्षारोपण, गैर वित्तीय संस्थानों, ऋण उपलब्ध कराने वाली सहकारी समितियों और ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण से संबंधित कुछ गतिविधियों को लॉकडाउन प्रतिबंधों से छूट मिलेगी। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति, बिजली लाइनों को बिछाने और दूरसंचार ऑप्टिकल फाइबर को बिछाने से संबंधित गतिविधियों में भी छूट दी गई है। हालांकि सभी जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। सरकार की ओर से कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए हर संभव प्रयास जारी है। इसके चलते देश में कोरोना वायरस की रफ्तार में कमी आई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोरोना के मामले में 40% की गिरावट आई है। 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में डबलिंग रेट औसत डबलिंग रेट से भी कम है। राज्यों को 5 लाख रैपिड टेस्ट किट दिए जा रहे हैं। हम अब तक की अगर स्थिति को देखें तो पाते हैं कि लॉकडाउन से पहले अगर हमारे देश का डबलिंग रेट ऑफ केसेस लगभग 3 दिन था, तो पिछले 7 दिनों को अगर डेटा देखते हैं तो हमारा डबलिंग रेट अब 6.2 डेज है। और मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा कि 19 स्टेट्स ऐसे हैं, 19 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ऐसे हैं जहाँ पर कि डबलिंग रेट देश के एवरेज से भी कम है। और वे स्टेट्स हैं केरला, उत्तराखंड, हरियाणा, लद्दाख, हिमाचल, चंडीगढ़, पौंडीचेरी, बिहार, उड़ीसा, तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, यूपी, कर्नाटका, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, असम और त्रिपुरा। मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा कि डबलिंग रेट इज़ ए प्रोडक्ट ऑफ हाउ वी आर ट्राइंग टू मैनेज द सिचुएशन एट फील्ड लेवल। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है और इस डबलिंग रेट को और कम करने के लिए और बेहतर करने के लिए हमें अपनी विजिल को उसी हिसाब से, उसी इंटेंसिटी से करना पड़ेगा। इसी तरह से हमने सिचुएशन को एक और तरीके से एनालाइज किया जिसको हम कहते हैं ग्रोथ फैक्टर। ग्रोथ फैक्टर कैलकुलेट किया जाता है कि जो नए केसेस आए हैं उनको उससे पहले वाले दिन कितने केसेस आए थे उसके प्रोपोर्शन में कैलकुलेट किया जाता है। तो अगर हम इस डेटा को भी देखें तो पाते हैं कि अगर हम 1 अप्रैल से 1.2 के एवरेज ग्रोथ फैक्टर को देख रहे हैं, जबकि इससे 2 हफ्ते पहले यही ग्रोथ फैक्टर 2.1 एवरेज था 15 मार्च से 31 मार्च तक। तो हम पाते हैं कि करीब 40% डिक्लाइन हुआ है ग्रोथ फैक्टर में। और ये डिक्लाइन भी तब हुआ है जब एक साथ हम लोग दूसरी तरफ से प्रयत्न करके नंबर ऑफ केसेस जहाँ पर सैंपल्स कलेक्ट हो रहे हैं, सारी और ILI के केसेस के भी सैंपल कलेक्ट हो रहे हैं, तो हम अपना नंबर ऑफ सैंपल्स देश में बढ़ाते आ रहे हैं। इसी के साथ ही हमने एक आउटकम रेशियो भी कैलकुलेट किया। आउटकम रेशियो कैलकुलेट करते हैं जो केसेस रिकवर्ड हुए हैं वर्सेस जो केसेस जिनमें डेथ रिपोर्ट हुई हैं। मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा कि देश की तरफ से देखें तो हर केस
हर डेथ एक चिंता का विषय है। और उसी समय में लेकिन अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पर केसेस हैं करीब 80% अगर हमारे केसेस रिकवर हो रहे हैं और 20% केसेस में डेथ अगर जैसे रिपोर्ट हुई है, तो ये दूसरे देशों से अगर कंपेयर करें तो शायद हम कुछ बेहतर कर रहे हैं और हमें इसे और बेहतर करने की हमें एफर्ट करना है कि हम अपना ट्रीटमेंट और केयर फर्दर इम्प्रूव करते रहें ताकि हम इस रेशियो में फर्दर इम्प्रूवमेंट ला सकें। साथ ही 5 लाख रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट्स सभी राज्यों और जिलों में जहां पर भी हाई केस बर्डन नोट किया गया था वहां वितरित किए जा रही हैं। वाहक उड़ानों एवं लाल मेल मोटर वैनों द्वारा आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया है, जैसे दवाइयाँ, कोविड परीक्षण किट और मेडिकल इक्विपमेंट जैसे वेंटिलेटर्स। उन्होंने 100 टन से अधिक दवाई एवं मेडिकल इक्विपमेंट अस्पतालों एवं अन्य ग्राहकों तक पहुंचाया है। लॉकडाउन के दौरान भारतीय डाक ने विशेष व्यवस्था करके अंतर्राज्यीय और राज्यांतरिक डाक पहुंचाई है। डाक विभाग प्रयासरत है कि लोगों को उनकी पेंशन राशियों का भुगतान तथा सरकार के अन्य सामाजिक लाभ उनके द्वार तक पहुंचाएं। आधार आधारित भुगतान प्रणाली का प्रयोग करते हुए लगभग 2 लाख डाकिये और ग्रामीण डाक सेवक किसी भी बैंक से संबंधित राशि का भुगतान इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक्स के माध्यम से ग्राहकों को उनके द्वार पर सुनिश्चित करा रहे हैं। इस प्रकार सैकड़ों करोड़ रुपए की राशि सामाजिक सुरक्षा पेंशन तथा प्रत्यक्ष लाभांतरण के रूप में विधवाओं, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजन लाभार्थियों को उनके द्वार तक मुहैया कराई गई है। भारतीय डाक ने जिला प्रशासन एवं गैर सरकारी संस्थाओं के साथ भी मिलकर खाद्य पदार्थ और राशन का वितरण किया है। देश के विभिन्न भागों में मोबाइल पोस्ट ऑफिस कार्य कर रहे हैं जो आधारभूत डाक और वित्तीय सेवा प्रदान कर रहे हैं। इन सेवाओं द्वारा लॉकडाउन पीरियड में हमारा उद्देश्य है कि लोगों को राहत